بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، میرے دوست احباب، میں مختار علی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین اکرام، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ میں اپنے یوٹیوب چینل میرے نام انفارمیٹیو میں مختلف قسم کے ٹاپکس لے کے حاضر ہوتا ہوں تاکہ میرے دوست احباب ہیں ان کو بہت زیادہ فائدہ ہو۔ آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ عربک کے حوالے سے ہے۔ اگر میرے دوست احباب پاکستان سے، انڈیا سے، کسی بھی کنٹری سے سعودی عربیہ آنا چاہتے ہیں تو ان کو سب سے پہلے جو پریشانی ہوتی ہے ادھر وہ لینگویج کے حوالے سے ہوتی ہے، اور لینگویج پہ ہی میں بات کرنے جا رہا ہوں۔ انشاءاللہ آپ کو میں وائٹ بورڈ پہ جو ہمارا ہے ادھر لکھ کے بتاؤں گا کہ آپ نے لینگویج کیسے سیکھنی ہے، اور انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ چلیے اب موو کرتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ ٹاپک میں نے پہلے جو ہمارے پروگرام تھے اس میں نے آپ کو بتایا تھا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20۔ جو آج کا ہمارا لیکچر ہے وہ آپ کو میں 1 2 3 4 5 6 جیسے پاکستان میں آپ گنتی لکھتے ہیں 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 اور 13 14 15 16 17 18 19 اور 20۔ یہ تو آپ گنتی لکھیں گے پاکستان میں۔ عربی میں اگر آپ نے گنتی لکھنی ہے تو آپ کیسے لکھیں گے وہ آپ کو میں بتاتا ہوں۔ 1 کو آپ نے سیم 1 ہی لکھنا ہے، اور 2 کو آپ نے 2 ایسے لکھنا ہے، 3 کو آپ نے 3 ایسے لکھنا ہے۔ اگر تیزی کے ساتھ لکھنا ہے تو میں سلیش کے ساتھ آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ نے ایسے بھی 3 لکھ سکتے ہیں۔ 4 کو آپ نے ایسے لکھنا ہے، 5 کو آپ نے ایسے لکھنا ہے، 6 کو ایسے لکھنا ہے، 7 کو ایسے، 8 کو ایسے، 9 کو ایسے، 10 کو ایسے، 11 سیم، 12 ایسے لکھیں گے، اور 13 کو آپ لوگ 13 یعنی 14 کو آپ ایسے لکھیں گے، 15 کو آپ ایسے لکھیں گے، 16 17 18 19 اور 20 کو آپ لکھیں گے ایسے۔ یعنی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں فرق کیا ہے۔ فرق یہ ہے کہ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، لیکن میں نے آپ کو جیسا آپ کو بتایا 1 کو ہم عربی میں لکھیں گے اور گنتی لکھیں گے اردو کی۔ اردو میں آپ نے 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، عربی میں آپ نے 1 2 3 4 5۔ 1 کو یعنی واحد، 2 کو اثنین، 3 کو ثلاثہ، 4 کو اربعہ، 5 کو خمسہ۔ آپ دیکھ رہے ہوں کہ میں نے 0 لکھا ہے، یہ 0 نہیں ہے۔ عربی میں آپ نے ایسے 5 کو لکھنا ہے۔ آپ نے جیسے گول دائرہ لگاتے ہیں وہ گول دائرہ لگانا ہے، اور 5 ایسے ہی بنیں گے۔ 6 کو آپ ستہ بولیں گے، 7 کو آپ سبا بولیں گے، 8 کو آپ تمانیہ بولیں گے، 9 کو آپ تسعہ بولیں گے، 10 کو عشرہ بولیں گے، اور جو 11 ہے اس کو 11 بولیں گے، 12 کو 12 بولیں گے۔ سیم آپ نے ایسے لکھنا ہے عربی میں۔ 13 کو آپ نے 13 بولیں گے، اور لکھنا آپ نے ایسے بھی ہے۔ اگر آپ نہیں دیکھ سکتے تو آپ ایسے بھی 3 کو ڈال سکتے ہیں، اور 14 کو آپ 14 بولیں گے، اور 15 کو آپ دیکھیے۔ آپ ناظرین کرام، میرے دوست احباب پردیسی بھائی جو سیکھنا چاہتے ہیں، 15 کو میں نے کیسے لکھا ہے، 1 ڈالا ہے اور 0 ڈالا ہے۔ آپ نے اس کو 10 نہیں دیکھنا۔ آپ اگر عربک کنٹری میں ہے، کسی بھی عربی کنٹری میں ہے، یعنی دبئی میں ہے یا سعودی عربیہ میں ہے یا قطر میں، بحرین میں، تو آپ نے عربی کے لحاظ سے دیکھنا ہے۔ 15 کو میں نے 15 بولا ہے، یعنی 1 اور 0 ڈالا ہے، یہ 15 بن گیا، 15 بن گیا یعنی۔ اور 16 کو آپ نے 17، 17 کو 17، 18 کو 18، 19 کو 19، 20 کو آپ 20 یعنی 20 آپ کا مکمل ہو گیا اس ٹائم۔ چلیے میں رپیٹ آپ کو کرا دیتا ہوں آپ کی آسانی کے لیے۔ آپ نے اردو میں تو آپ کو پتہ ہے، ہندی میں بھی آپ کو پتہ ہے، اور بنگلہ میں بھی آپ کو پتہ ہوگا انشاءاللہ۔ اور جو آج کی عربی گنتی کے حوالے سے وہ
पिछले जो प्रोग्राम था मैंने वो उसमें मैंने आपको बताया था कि आपने वाहिद इतने तलाता अरबा खमसा सित्ता सबा आत्मान तिसा अशरा कैसे लिखना है। लेकिन आज जो अरबी की गिनती है उस हवाले से मैंने प्रोग्राम बनाया। इंशाल्लाह आप नाज़रीन जो मेरे परदेसी भाई है उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। एक को आपने कैसे लिखना है, एक को आपने अरबी में एक ही लिखना है, दो को आपने ऐसे लिखना है, ये दो अतनैन आपको बोलेंगे, तीन को आपने तलाता बोलना है लिखना है, सेम जो साइन है ऐसे लिखना है, चार को आप अरबा बोलेंगे, पाँच को आपको पहले भी मैंने बताया कि ऐसे ज़ीरो होगा, पाँच को खमसा बोलेंगे, छः को सित्ता बोलेंगे, सात का जो ये इधर का निशान है उसको आप नीचे से ऊपर करना है, आठ के ऊपर को नीचे करना है। ये जो दो चीज़ें हैं आपने अपने ज़हन में बिठा लेनी है, दो चीज़ें ये और एक चीज़ है। पाँच को आप अरबी में जब भी देखेंगे तो वो सिफर आपको नज़र आएगा, ज़ीरो का जो साइन होता है वो नज़र आएगा। सात और आठ इस ये जो सऊदी कंट्री है या जो भी अरबी कंट्री है, अरब की कंट्री है, उसमें आपको सात और आठ का जो निशान है वो आपको ऐसा नज़र आएगा तो आपको पता चल जाएगा कि अगर नीचे से ऊपर को जाना है तो सात है और अगर आठ के लिए ऊपर से नीचे को आना है तो आठ है। ये साइन आपने याद रखना है। नौ को आप तिसा बोल देंगे, 10 को आप अशरा बोल देंगे। और 10 की बात करें तो आपको मैं दिखाता चलूँ लिख के कि 10 मैंने लिखा है एक और ज़ीरो, ये तो हो गया उर्दू गिनती में। अरबी में आपने एक के साथ नुक्ता डालना है, नुक्ते से मुराद जैसे मैंने ये नुक्ता डाला हुआ है, ये नुक्ता ज़ाहिर करेगा 10 को, और 20 को ऐसे ही नुक्ता डालना है, 30 के लिए भी आपने नुक्ता डालना है, 40 के लिए 50 के लिए भी ऐसे नुक्ता डालना है। यानी अगर नुक्ता डालेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये अशरा है। अगर 20 के आगे नुक्ता होगा तो अशरीन होगा, अगर 2 नुक्ते होगा तो मीतेन होगा, 3 नुक्ते होंगे तो तलाता अल्फ होगा, 4 नुक्ते होंगे सोन, आगे गिनती चलती रहेगी। और 11 को आप जैसे जो साइन होता है 11 का ऐसे ही आपने डाल देना। 12 को इतनाशर आप बोलते हैं, आपने ऐसे साइन लिखना है। और 13 को तलताशर साइन आपको पता ही है, मैंने आपको बता दिया पिछले भी प्रोग्राम में, इसमें भी आपको मैं बता रहा हूँ। 14 को आप अरबाताशर बोलेंगे, 15 को सेम वही चीज़ आपकी आ गई कि आपने 15 को कभी भी 10 नहीं बोलना कि आप सोचेंगे भाई ये 10 लिखा हुआ है, ये 10 नहीं है। अरबी में आपने 15 को एक के साथ ज़ीरो होगा तो ये आपका खमस्ताशर होगा यानी 15 होगा। 16 को सित्ताशर, 17 को सबाताशर, 18 को तमंताशर और 19 को तिसाताशर, 20 को अशरीन। देखिए अशरीन में मैंने ये नुक्ता डाला हुआ है, ये नुक्ता ज़ाहिर करेगा अशरीन को, 20 जो होता है हमारा उसको ज़ाहिर करेगा। और जो इसमें कंडीशन है वो कंडीशन सेम ही वही कंडीशन आ गई है आपकी आसानी के लिए। सबाताशर और तमंताशर यानी 17 और 18 की वही सेम कंडीशन, 7 और 8 की, 17 18 की भी वही, 27 28 की भी वही, और जो 37 और 38 की भी वही है, 47 48 की भी वही है, और 57 58 की भी वही है, और 67 जो 68 होते हैं वही यानी सेम कंडीशन वही सेम चलती रहेगी आगे। बस आपने अपने ज़हन में ये बिठाना है कि 7 का साइन क्या होगा और 8 का साइन क्या होगा। जैसे 17 को आप सबाताश बोलते हैं, नीचे से ऊपर जा रहे हैं, और 18 को आप ऊपर से नीचे आ रहे हैं, इसको हम तमंताशर बोल देंगे। ये जो आपको आज मैंने गिनती बताई है आपको आसानी, आपकी आसानी के लिए, यानी आपको गिनती जो पाकिस्तान के लिहाज से है वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20। और अरबी में आपने कैसे बोलना है वो इंशाल्लाह मैं आपको बताता हूँ, आपकी आसानी के लिए, लिखने में भी आपको आसानी हो, बोलने में भी आपको आसानी हो। तो वो ये है कि आपने जो भी परदेसी भाई है या परदेश में आना चाहते हैं, किसी भी 100 कंट्री में जाना चाहते हैं, उनके लिए 1 का साइन वही होगा 1, 2 का साइन इतने, 3 का साइन तलाता, 4 का साइन अरबा, 5 का साइन खमसा आपको पता है, 6 का साइन सित्ता, 7 का साइन सबा, 8 का साइन तमनिया, 9 का तिसा और 10 का अशरा। आपको पहले भी पता है कि 10 को कैसे लिखना है। 11 को आप इदशर, 12 को आप इतनाशर, और 13 को आप तलताशर, 14 को आप अरबाताशर, 15 को आप खमस्ताशर, 16 को सित्ताशर, 17 को सबाताशर, 18 को तमंताशर,
19 को 19 और 20 को 20 लिखेंगे। 20 आपने लिखना है, 2 डाल के नुक्ता डालना है। अगर 30 लिखना है तो 3 डाल के नुक्ता डालना है। नुक्ता ज़ाहिर करेगा, साइन नुक्ते का जो होगा वो आपके 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100 को ज़ाहिर करेगा। ये जो उर्दू की गिनती और अरबी गिनती के जो डिफरेंस थे वो मैंने आज आपको समझाने की कोशिश की है। जो भी मेरे दोस्त अहबाब परदेसी भाई है जो आ चुके हैं, परदेश में काम कर रहे हैं, उनको पता नहीं चलता कि हमारा कफ़ील हमसे क्या बात कर रहा है या कोई चीज़ मांग रहा है, तो वो बोलता है कि आप मुझे 7 ऐसी चीज़ें के नाम बता दें या 7 चीज़ें वो चाहिए हमको, तो उसको पता ही नहीं चलता 7 बोलना किसको है या 7 का मतलब क्या है। तो इंशाल्लाह अगर वो मेरे परदेसी भाई दोस्त अहबाब जो अभी मेरे YouTube चैनल को फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह उनके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। चलिए नाज़रीन इकराम, अगर आपको मेरा ये प्रोग्राम अच्छा लगा है, परदेसी भाई दोस्त अहबाब को मेरा ये प्रोग्राम अच्छा लगा है तो काइंडली फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह आपका हामी व नासर, शुक्रिया, बेस्ट ऑफ लक, पाकिस्तान जिंदाबाद।